Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 15, that is our environment. So, as the name suggests, in this chapter, we are going to study about the environment, our surrounding, and what are the necessary factors that are present in our environment, and how these factors are interrelated with each other. All these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so first of all, let us know that what do we exactly mean by the term environment. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper, and by people around us. Our elders told us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss the environmental issues, right? हम हमारी डेली लाइफ में जो टर्म है environment काफ़ी बार सुनते हैं, whether it be in newspaper or in televisions or by the people surrounding us. um, some people used to call that we should work in a healthy environment. हमारे elders हमको बोलते हैं that the environment is not as it is right now as it was earlier, मतलब पहले जैसा environment अब नहीं रहा है, right? environment से related global summits होती हैं international level पर developed और developing countries में, right? So exactly environment का मतलब क्या होता है, that we are going to see now. In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर. In class ninth, we saw how different materials are cycled in environment in separate biogeochemical cycles. In these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen and water are changed from one form to another. क्लास नाइन्थ में आपने देखा कि किस तरीके से जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, राइट? और जो मेन कंपोनेंट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, दैट आर द नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर. वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट दीज साइकिल्स. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन साइकिल्स को अफेक्ट करती हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स का क्या इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पर. दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, what happens when we add our waste to the environment. अगर हम हमारा जो वेस्ट है, whether it be domestic और इंडस्ट्रियल और केमिकल, अगर हम उस वेस्ट को एनवायरनमेंट में ऐड करते जाएंगे, अगर हम हमारा वेस्ट एनवायरनमेंट में थ्रो करते जाएंगे, सो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव, दिस थिंग वी हैव टू सी. ओके, in our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste materials? What happen after we throw them away? Let us perform an activity to find the answers of these questions. हम हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, वेदर हमारे घरों में हो, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इट कैन बी अ केमिकल वेस्ट, फार्म्स में और एग्रीकल्चर में, किसी भी सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. और अगर हम उस वेस्ट को थ्रो अवे कर देते हैं इन द एटमॉस्फेयर, इन द एनवायरनमेंट, देन व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव on our environment, this thing we are going to see. For this, one activity is given to you. That activity you have to read by your own. Okay, so after reading this activity, what will you conclude? We have seen in the chapter of life processes that the food we eat is digested by the various enzymes in our body. Life process is a chapter in your notebook. So उस chapter में you are going to study कि जो food हम खाते हैं वो digest हो जाता है हमारी body में जो enzymes होते हैं उनके द्वारा. Basically हम जो food खाते हैं वो food का breakdown होता है और उस breakdown के बाद हमको उस food से energy मिलती है.
तो फूड का ये ब्रेक डाउन कौन करता है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट एंजाइम्स ब्रेक डाउन अवर फूड एंड गिव अस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. Have you ever wondered why the same enzymes does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their own action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. तो अगर एंजाइम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो अगर हम कुछ भी चीज़ खाएं तो एंजाइम्स को उनको भी ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं होता है. एंजाइम्स का अपना एक नेचर होता है, उनका एक स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, राइट? दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल. इसलिए अगर हम कोयल खाते हैं, कोयला खाते हैं, तो उससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. बिकॉज ऑफ दिस many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. उसी तरह से ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको बैक्टीरियाज डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, राइट? अगर हम बात करें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट की, वेदर इट बी वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, और जो हमारा द लेफ्ट ओवर फूड, उस तरह का अगर कोई वेस्ट है, तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस तरह के वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, राइट? बट वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, या इस तरह के कोई दूसरे वेस्ट की, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरह के वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, राइट? बिकॉज दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और वो हर किसी चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे. These materials will be acted upon by a physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. हम इन मटेरियल्स को आइडर बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर देकर हम किसी तरीके से इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, इनको एक तरीके से नष्ट कर सकते हैं, बट दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर environment. Okay, substances that are broken down by the biological processes are said to be biodegradable. ऐसे substances जो easily break down हो जाते हैं, easily जो decompose हो जाते हैं, उनको बोला जाता है biodegradable. मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, द लेफ्ट ओवर फूड हो गया, तो इस तरह का जो वेस्ट होता है दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड, and that is why it is called as the biodegradable. Bio is related to our environment and degrade करना means break down करना. तो जब हम नेचुरल तरीक़ों से किसी सब्सटेंस को डिग्रेड कर पाते हैं, ब्रेक डाउन कर पाते हैं, तो that is called as biodegradable. How many of the substance you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in the manner are said to be non-biodegradable. और ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचुरल तरीक़ों से डंपिंग हो गई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं दैट आर सेड टू बी द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. और इस तरह के जो इन्वायरमेंट हैं, वो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, और लंबे समय में रहने के साथ साथ वो हमारे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी डालते हैं, और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट? So all these kind of waste materials are having the harmful impact on our environment. Now here one more activity is given to you students, that also you have to read by your own. Here some questions are given to us that we will solve afterwards. Okay, now our next topic is ecosystem and what are its components. In your previous classes you have studied the term ecosystem. आप ecosystem के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we are going to discuss this topic in detail. Okay,
all the organisms such as plant, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन द ह्यूमन बींग्स, हम सब और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं और सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लिविंग, राइट. हम जिंदा रहने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको एनिमल्स और ह्यूमन बींग से मिलता है. तो प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट द कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी कैन से दैट all the components in our surroundings are interrelated to each other, all are डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, राइट. सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और एक दूसरे के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती हैं. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. और इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस तरीके से एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, राइट. दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. So ecosystem में दो component होते हैं, biotic as well as abiotic. Biotic components में सारे living organisms आ जाते हैं, plant, animal, human being, सब कुछ. abiotic factors में वो चीज़ें आ जाती हैं जो ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हीट, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर नहीं रहेगा, राइट. हमको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की भी, रेनफॉल की भी, विंड की, सॉइल, मिनरल्स. अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं हुई तो वी वुड डाई, राइट. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड और इसीलिए इनको बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए और एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स जिन पर लिविंग थिंग्स डिपेंड करती हैं वो आ गई. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट सच एज ग्रासेस, ट्रीज, flower bearing plants like roses, jasmine, sunflower and animals like frog, insect and birds. अगर आप एक गार्डन में जाएं तो आप ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट देयर. ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. वहाँ पर आपको ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलेंगे और वो सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, राइट. ऑल्सो वो सब वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट पे भी डिपेंड करते हैं, वहाँ के वेजिटेशन पर, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ की हवा, वहाँ का टेम्परेचर, उनको वाटर कितना मिल रहा है. ऑल दीज आर द फैक्टर्स जिन पर वो वहाँ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं. सो अ गार्डन इन एन इको इज़ एन इकोसिस्टम. तो एक गार्डन जो है वो एक एग्जाम्पल हो गया इकोसिस्टम का. अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक. सिमिलरली एक फॉरेस्ट में भी जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो फॉरेस्ट भी एक तरह का इकोसिस्टम. सिमिलरली पॉन्ड और लेक जिसमें कि एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, वो सब भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग, it is also one of the example of ecosystem.
These are the natural ecosystems while the gardens and crop field are the human made या artificial ecosystem. A forest, pond, lake ये सब क्या हो गए नेचुरल इकोसिस्टम. लेकिन अगर हम बात करें गार्डन्स की तो गार्डन ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं. तो जो गार्डन है वो एग्जाम्पल हो गया मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का. सिमिलरली क्रॉप फील्ड्स जो होते हैं वो भी एग्जाम्पल हो गए मैन मेड ecosystem ka. Here one more activity is given to you that also you have to read by your own. Okay, so we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenances from the environment. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. Producers, then consumers and then decomposers, right? Producer obviously हमको समझ में आ रहा है someone which is producing something, consumer someone which is consuming something and decomposer someone which is decomposing something, right? तो जो plants होते हैं वो food को produce करते हैं, that is why plants are called as the producers. जितने भी दूसरे organisms हैं जो अपने फूड के लिए किसी न किसी पर डिपेंड करते हैं उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स. और खाना कंज्यूम होने के बाद जो उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको दूसरे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स आर जनरली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? ये चीज़ आप ऑलरेडी क्लास 10th में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न from through the self-sustaining ecosystem created by us above. ऊपर वाली एक्टिविटी में आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए कहा गया है. तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, व्हाट आर द कंज्यूमर्स एंड व्हाट आर द डीकम्पोजर्स प्रेजेंट इन दैट ecosystem. Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो शुगर या स्टार्च बना सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल? तो यू मस्ट रिकॉल दिस. हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं और वो जो खाना होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, राइट? सो प्लांट्स आर दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट इज़ वाई हमने उनको क्या बोला है? प्रोड्यूसर्स. सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन algae which can produce food by the photosynthesis come under this category are called as the producers. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ ब्लू ग्रीन algae जो अपना खाना खुद बनाती हैं उन सभी को इस कैटेगरी में रखा जाता है. एंड ऑल दीज आर सेट टू बी द प्रोड्यूसर्स, राइट? क्योंकि ये सब अपना खाना खुद बना रहे हैं इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. नाउ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स either directly or indirectly for their sustenance. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers. Other consumers are the consumers, right? तो जो ऐसे organisms जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स. वी नो दैट अब कंज्यूमर्स में भी 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं. हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स, राइट? सो अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे उनको बोलेंगे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड variously as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Can you give examples for each of these categories of consumers, right? Herbivorous हमको पता है ऐसे plants या animals ऐसे animals जो सिर्फ green plants खाते हैं उनको बोला जाता है herbivorous, right? For example cow, buffalo, goat, all these are the examples of herbivorous.
देन कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर खाते हैं, उनको बोला जाता है कार्निवोरस। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर। देन ओमनीवोरस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको बोला जाता है ओमनीवोरस। ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस। कैट, डॉग, ऑल दीज आर ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवोरस, राइट। देन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस खुद से शिकार को मारकर और फिर खाते हैं, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। ओके, सो कैन यू गिव एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर? आपको इन सभी कैटेगरीज का एग्जाम्पल बताना है, दैट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑल दीज कैटेगरीज। ओके, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट clean the aquarium and some fishes and plants have died. एक्वेरियम वो जगह होती है जहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, फिश पॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो एक्वेरियम को अगर एक्वेरियम में कोई फिश या प्लांट डाई हो गया है और अगर हम एक्वेरियम को क्लीन नहीं करते हैं तो क्या होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स डाई? जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, वेदर इट बी प्लांट और एनिमल, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, राइट। तो जो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, मतलब उसकी बॉडी के वेरियस कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। As they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. और ये हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सॉइल में चले जाते हैं, और उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, राइट। What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो जो डेड बॉडी है उसका क्या होगा? जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, राइट। और जब वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएगी तो इट विल नॉट बी फर्दर यूज्ड, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पे से एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज जो डेड बॉडीज़ हैं वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएंगी, राइट। विल द नेचर रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर? और अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो सॉइल का रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है, राइट। दैट इज़ वाई इकोसिस्टम में सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, और अगर कोई भी चेन बीच में से ब्रेक होती है तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होगा, और वी कैन से दैट जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। चाहे आप प्लांट्स ले लें, कंज्यूमर्स ले लें, डिकम्पोजर्स ले लें, अगर चेन कहीं से भी ब्रेक होती है, अगर अब प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, डिकम्पोजर्स भी ऑब्वियसली नहीं होंगे। अगर बीच में से हम कंज्यूमर्स को हटा देते हैं तो ऑब्वियसली लिविंग बीइंग जो हैं पूरी अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स होंगे, बाकी जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब वी कैन से दैट इकोसिस्टम में सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और अगर चेन कहीं से भी ब्रेक होती है तो द होल इकोसिस्टम वुड गेट डिस्टर्ब्ड and the existence of life would be affected. Okay,
So that's all for today's class, students. In our next class, we are going to discuss about the food chain and food web. Here one more activity is given to you, that is 15.4. That also you have to read by your own. Okay. So that's all for today's class. Thank you.